ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 17 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ, PCS, PSCB, SSC ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੈਚਿਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। IBPS RRB ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਚ, JEE ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SI ਬੈਚ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਿਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਵਰਲਡ ਯੂਥ ਸਕਿੱਲਸ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਯੂਥ ਸਕਿੱਲਸ ਡੇ ਕਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਯੂਥ ਸਕਿੱਲਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਸਕਿੱਲਸ ਫॉर ਰੈਸੀਲੀਐਂਟ ਯੂਥ। ਸਕਿੱਲਸ ਫॉर ਰੈਸੀਲੀਐਂਟ ਯੂਥ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੇਮੰਗ ਆਮੀਨ। ਹੇਮੰਗ ਆਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟੈਰਿਮ CEO ਆਫ BCCI, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਟੈਰਿਮ CEO ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੇਮੰਗ ਆਮੀਨ ਆਫਟਰ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਹੁਲ ਜੌਹਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਦੋਰਾਏ ਸਵਾਮੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਟੂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਵਿਕਰਮ ਦੋਰਾਏ ਸਵਾਮੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਟੂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਰੁਦਰੇਂਦਰ ਟੰਡਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਟੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਰੁਦਰੇਂਦਰ ਟੰਡਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਵਿਧੂ ਪੀ ਨਾਇਰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਰਕਮੇਨੀਸਤਾਨ ਦੇ। ਵਿਧੂ ਪੀ ਨਾਇਰ ਤੁਰਕਮੇਨੀਸਤਾਨ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੈਕ ਚਾਰਲਟਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗ ਜੈਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੈਕ ਚਾਰਲਟਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਪਪੂਲਰਲੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਿਗ ਜੈਕ ਇਜ਼ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ? ਹੂ ਹੈਜ਼ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ? ਫੁੱਟਬਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਮ ਸੁਰਬੀਅਰ। ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਮ ਸੁਰਬੀਅਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਈਲ ਜੈਡੀਨੈਕ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਲ ਜੈਡੀਨੈਕ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਫਰੋਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਨਾਊਂਸਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਫਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕॉम INC ਦੁਆਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 0.15% ਸਟੇਕ ਦੇ ਲਈ 730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਲਵੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ USA ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੌਪ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ USA ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ? USA ਫॉर द सेकंड ਕੌਨਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? 88.75 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ। 88.75 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ
2 दिन की वीडियो कॉन्फ्रेंस स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर दे नाल दे नाल 2 दिन की वीडियो कॉन्फ्रेंस नूं होस्ट किया। नैक्सट है अरविंद केजरीवाल कौन ने? चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली दे। इन्हां द्वारा दूसरा प्लाज्मा बैंक इनोग्रेट किया गया लोक नायक हॉस्पिटल दिल्ली दे विच दूसरा प्लाज्मा बैंक अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया। नैक्सट है कतर इज़ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर 2020 मिड ईयर क्राइम इंडेक्स। 2020 के मिड ईयर क्राइम इंडेक्स जिसनों रिलीज़ किया गया नंबियो द्वारा रिलीज़ किया गया और कतर इस दे विच सेफेस्ट कंट्री चूज़ की गई है। हालांकि कतर दे विच जिहड़ी टैररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी ज़्यादा ने, पर डाटा बेसिकली हम कह नहीं सकते किस बेसिस से रिलीज़ किया गया। और ताइवान भी ऐसी प्लेस है जिथे राइट्स वगैरह होंदे रहंदे ने। एक बच्चे का कमेंट भी आया सीगा भी ये किस तरीके दे नाल सेफेस्ट कंट्री है। हुण ये तो कह नहीं सकते जिहड़े ऑर्गेनाइजेशन है नंबियो इस दे अनुसार अपने वास्ते याद रखना सिर्फ याद रखना पएगा आपनूं कि नंबियो के अनुसार 2020 मिड ईयर क्राइम इंडेक्स दे विच सेफेस्ट कंट्री कतर और ताइवान ने। नैक्सट है यूनीसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड न्यूयॉर्क दे विच हैडकुआटर है। HH4 इस दे हैड ने और फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर है। और संगीता रेड्डी इस दे हैड ने इन्हां द्वारा री इमेजिन कैंपेन लॉन्च किया गया। दोनों ने मिलके री इमेजिन कैंपेन नूं लॉन्च किया। नाबार्ड द्वारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट गोविंदा चिंतला राजू मुंबई महाराष्ट्र दे विच हैडकुआटर है। इन्हां द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल चौपाल 39th फाउंडेशन डे के उत्ते 13 जुलाई नूं लॉन्च किया गया। 39th फाउंडेशन डे के उत्ते 13 जुलाई नूं इसनूं लॉन्च किया गया। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन ने? राजीव कुमार। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने प्रेजेंट किया इंडिया का सैकेंड वॉलंटरी नैशनल रिव्यू किस दे विच? यूनाइटेड नेशन की हाई लैवल पॉलिटिकल फोरम दे विच। यूनाइटेड नेशनस की एक मीटिंग दे विच किस दे उत्ते? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उत्ते एक मीटिंग बार बार हैल्ड किए जाते हैं मीटिंग्स। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नूं टारगेट रखा गया 2030 इसनूं कंप्लीट करना अचीव करना है सारी कंट्रीज़ द्वारा। तो उसनूं अचीव करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट इनीशिएटिव्स ले रहे हैं। ग्रीन इंडिया वर्गे इनीशिएटिव डिफरेंट लिते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रेलवे द्वारा अनाउंस किया गया कि 2030 तक अपने आप को ग्रीन रेलवे बना लेंगे। इस तरीके के इनीशिएटिव्स याद रखने। नैक्सट है हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC एक ही बनाएगी ISFC बैंकिंग यूनिट बनाएगी गिफ्ट सिटी ऑफ गांधीनगर गुजरात दे विच। गिफ्ट की फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। पेरूकुलम विलेज है जिहड़ा कोलम डिस्ट्रिक्ट का पेरूकुलम विलेज केरला का पहला फर्स्ट बुक विलेज बन चुका है। अगर आप इंडिया के फर्स्ट बुक विलेज की गल करिए तो महाराष्ट्र का बिहार विलेज है। सेंटर एलोकेटेड ₹1500 करोड़। सेंटर ने की करा 1500 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं। सेंटर ने 1500 करोड़ अनाउंस किए हैं किस दे लई? हरियाणा के लिए। हरियाणा स्टेट को 1500 करोड़ अनाउंस किया है जिसके विचों 500 करोड़ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अंडर मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम और 1000 करोड़ पौंड की रेजुविनेशन के लिए 1000 करोड़ पौंड की रेजुविनेशन के लिए लॉन्च दिता गया। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम के प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के PM स्वनिधि स्कीम है जी उसकी इंप्लीमेंटेशन के टॉप किया मध्य प्रदेश ने। किहड़ी स्टेट ने? मध्य प्रदेश ने।
शिवराज सिंह चौहान इत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने, नाम याद रखना है। नबार्ड अच्छा, इस तो इलावा लालजी टंडन इत्थे दे गवर्नर ने, जिन्हां दी हैल्थ इशूज़ होने कारण आनंदीबेन पटेल जिहड़े कि यूपी के गवर्नर ने, उन्होंने एडिशनल चार्ज दिता गया MP का। नबार्ड ने की करिया, ग्रांट असिस्टेंस नूं एक्सटेंड किया। किन्नी ग्रांट? 221.89 करोड़ रुपए की जिहड़ी ग्रांट है किहड़ी स्टेट नूं, अच्छा इत्थे स्टेट लिखनी रह गई है कर्नाटका, किहड़ी स्टेट नूं? कर्नाटका नूं दिता गया। नोट कर लियो, इत्थे कर्नाटका लिखना रह गया। टू सपोर्ट 29 वाटर शेड प्रोजेक्ट्स इन 3 लाख हेक्टेयर्स बेनीफिटिंग 66,500 फैमिलीज़ ऑफ कर्नाटका दे लई इस ग्रांट असिस्टेंस नूं एक्सटेंड किया गया। नैक्सट आप डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपोर्टेंट मोनूमेंट्स। सब तो पहले गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कित्थे है? मुंबई महाराष्ट्र दे विच। कुतुब मीनार न्यू दिल्ली दे विच है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी आगरा दे विच। आगरा दे विच। गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटका दे विच है। कर्नाटका दे विच है। सांची स्तूपा सांची भोपाल मध्य प्रदेश दे विच। दे विच है। रानी की वाव गुजरात दे विच है। वैसे तो ये मोनूमेंट्स घट इंपोर्टेंट बनते हैं, पर अपने लिए इंपोर्टेंट वो बनने बेसिकली अगर आप गल करिए रिसेंटली न्यूज़ के विच रह रहे हैं, किस कारण? फॉर एग्जांपल सन टैंपल न्यूज़ के विच रहा। इस तो इलावा कुछ ऐसे मोनूमेंट्स जेडे अगर गल करिए करंसी नोट्स के उत्ते ने, रानी की वाव करंसी नोट्स के उत्ते है। सांची स्टूपा ये अपने लिए इंपोर्टेंट बननगे। रेड फोर्ट हो गया। नैक्सट आप चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन है, हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इफ इट ब्लीड्स? इस बुक के ऑथर कौन ने? इस बुक नूं किन्हां द्वारा लिखा गया है? सैकेंड ऑप्शन स्टीफन किंग द्वारा एक बुक लिखी गई इफ इट ब्लीड्स। इस तो इलावा अगर आप बाकी ऑप्शंस की गल करिए, रस्किन बॉन्ड सॉन्ग ऑफ इंडिया कल ही आप डिस्कस की थी, हुण भी डिस्कस की है। अश्वनी कुमार माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, जून दे विच इस बुक नूं रिलीज़ किया गया सी, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। मुहम्मद अब्दुल मैनन, इस बुक नूं भी जून दे विच ही रिलीज़ किया गया सी। मुहम्मद अब्दुल मैनन द्वारा बिहाइंड द मास्क इस बुक नूं रिलीज़ किया गया सी मुहम्मद अब्दुल मैनन द्वारा। आर सी भार्गव द्वारा बुक लिखी गई गेटिंग कॉम्पिटिटिव किस द्वारा? आर सी भार्गव मारुति सुजुकी के चेयरमैन ने। नेक्स्ट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज वाइस प्रेजिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर 3 ईयर्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB आप काफ़ी बार इसके बारे डिस्कस किया है। डिफरेंट ग्रांट्स दिए गए हैं इस बैंक द्वारा इंडिया नूं। अगर आप गल करिए ADB के फैक्ट्स की, तो 68 मैंबर कंट्रीज़ ने। मैट्रो मनीला फिलीपीनस दे विच हैडक्वार्टर है। इसके हैड ने मसत्सुगु आसाकावा, यानी कि इसके प्रेजिडेंट ने मसत्सुगु आसाकावा। और वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किए जा रहे हैं, एक इंडियन पर्सन नूं वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किया जा रहा है। बेसिकली इलैक्शन कमिश्नर अशोक लवासा। इंडिया के इलैक्शन कमिश्नर ने अशोक लवासा। इलैक्शन कमिशन की गल करते हैं तो इलैक्शन कमिशन किस तरीके का होंगे? सब तो उपर होंगे ने चीफ इलैक्शन कमिश्नर, और इन्हों के 2 इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने। ठीक है, इंडिया के चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने सुनील अरोड़ा इंडिया के चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने। इन्हों के जूनीयर होंगे ने 2 इलैक्शन कमिश्नर। पहला नाम है सुशील चंद्र और दूसरा अशोक लवासा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक अशोक लवासा नूं 3 साल के लिए वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट कर रहे। 3 साल के लिए वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया। राजीव तोपनो बेसिकली अगर आप गल करिए प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सैक्रटरी ने, और इन्हों एडवाइज़र अपॉइंट किया गया सी। वर्ल्ड बैंक के
एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर दे वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर दे सीनियर एडवाइज़र अपॉइंट किए गए सी राजीव तोपनो IAS ने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पर्सनल सैक्रटरी ने। एंबेसडर टू WTO ब्रजेंद्र नवनीत अपॉइंट किए गए ने एंबेसडर और परमानेंट रिप्रजेंटेटिव किस दे विच WTO दे विच। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस दे विच रिप्रजेंटेटिव और एंबेसडर अपॉइंट किए गए ने ब्रजेंद्र नवनीत। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट ₹33,737 करोड़ टू बाय 7.7% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स की गल करिए इसकी तो चांदी हो गई है कि हर एक कंपनी अगर इंटरनेशनल कंपनी की गल करिए ज़्यादातर कंपनीज़ ने जियो दे विच इन्वेस्ट करे। डिफरेंट कंपनीज़ आप काफ़ी डिस्कस की ने। सब तो पहले फेसबुक द्वारा स्टार्टिंग की गई सी 9.99% के नाल और उस तो बाद डिफरेंट कंपनीज़ KKR हो गया, आदिया हो गया, सऊदी अरेबिया की कंपनीज़ हो गई। इन्हां कंपनीज़ ने जियो दे विच इन्वेस्ट किया। जियो डेप्ट फ्री हुई। जियो द्वारा FDI इंडिया का इंक्रीज़ होया। इंडिया 9th नंबर के FDI दे विच आया। दूसरी चीज़ मुकेश अंबानी जी की गल करिए उन्हों का रैंक फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार बार बार चेंज हो के और काफ़ी ऊपर आ चुका है। 9th प्लेस पर कहा गया, उस तो बाद 7th प्लेस और हुण एक रिसेंटली रैंकिंग्स दे विच इन्हां दा रैंक 6th रैंक से भी कहा गया वर्ल्ड के रिचेस्ट परसन के नाम के। ठीक है जी। हुण की होया कि एक न्यूज़ आप कल डिस्कस की क्वालकॉम दोबारा इन्वेस्टमेंट की गई 0.15% के लिए और हुण गूगल द्वारा अनाउंस की गई है 7.7% स्टेक बाय किया जाएगा 33,737 करोड़ का। ठीक है जी, ये याद रखना है। प्लस जियो रिलेटेड होर न्यूज़ डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज़ जियो ने लॉन्च किया है जियो ग्लास बेसिकली की है एक रियलिटी हैंडसैट है। अगर आप गल करिए आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के उत्ते होलोग्राफिक वीडियो कॉलिंग अगर तुसीं देखा होएगा जिहड़े यूज़ किए जाते हैं एक होलोग्राफिक वीडियो कॉलिंग की जा सकेगी। उस दे नाल एक ग्लासिस होणगे जिसकी हैल्प के नाल होलोग्राफिक वीडियो कॉलिंग की जा सकेगी। लॉन्च किया गया जियो ग्लास के नाम के उत्ते जियो द्वारा। इस तो इलावा जियो द्वारा यह भी कहा गया कि वो जल्दी ही 5G नैटवर्क के लॉन्च करनगे। जियो 5G लॉन्च किया जाएगा जल्दी ही मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर 5G प्रोजेक्ट जियो 5G लॉन्च किया जाएगा। ठीक है जी, ये याद रखना है। नेक्स्ट है हु विल गेट USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसनों दिता जाएगा इज द करेक्ट आंसर है 5th ऑप्शन बोथ 2 and 3 यानी कि N चंद्रशेखरन कौन ने टाटा कंपनी के CEO ने N चंद्रशेखरन और जिम टैकलेट कौन ने जिम टैकलेट ने लॉकहीड मार्टिन एक कंपनी है इस दे विच CEO ने लॉकहीड मार्टिन दे विच जिम टैकलेट और N चंद्रशेखरन टाटा के CEO ने दोनों को इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया जाएगा। ठीक है जी। इस तो इलावा सिद्धार्थ वरदराजन की गल करिए सिद्धार्थ वरदराजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिता गया सी। याद होएगा आप डिस्कस किया सी फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जर्मनी द्वारा। जर्मनी की डैशे बैले समथिंग इस तरीके की कंपनी सी डैशे बैले उन्होंने द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिता गया सी सिद्धार्थ वरदराजन को। RBI has set up a high level committee to study the use of quick response codes। QR कोड्स तुसीं देखे होंगे QR कोड्स होंगे ने उन्होंने रिस्पोंस को स्टडी करने के लिए टू प्रोसैस कॉन्टैक्टलैस ट्रांजैक्शन को प्रोसैस करने के लिए एक कमेटी बनाई गई RBI द्वारा बनाई गई। इस कमेटी को चेयर कौन करनगे इस कमेटी को चेयर करनगे दीपक पाठक बेसिकली IIT बॉम्बे के प्रोफैसर ने IIT
बॉम्बे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜੀਵ ਗੋਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗੋਬਾ। ਜੇਆ ਜੇਟਲੀ MMR ਮੈਟਰਨਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਔਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੇਆ ਜੇਟਲੀ। ਅਦੀਲੇ ਸੁਮਨਰੀਵਾਲਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਐਨੂਅਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਔਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਨੂਅਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਔਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਨਿਲ ਖੁੰਬਲੇ ICC ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਨਿਲ ਖੁੰਬਲੇ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਸਨੇ ਸੈਲੀਵਾ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ। ਬੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲੀਵਾ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਦ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ MOU ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ? MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ AII ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬੇਸਡ ਹੈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਸ ਦਾ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। DRDO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? DRDO ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਟੋਰਪੇਡੋ ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਟੀ ਟੋਰਪੇਡੋ ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ DRDO ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਅੱਡਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲੇਅਰ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ। ਸਪੋਰਟਸ ਅੱਡਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬ੍ਰੈਟਲੀ ਨੂੰ। ਬ੍ਰੈਟਲੀ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬ੍ਰੈਟਲੀ। ਔਰ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, MS ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਪੋਕਰ ਸਟਾਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਲਾ ਲੀਗਾ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਸੁਨੀਲ ਚੇਤਰੀ ਔਰ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਚੇਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ JSW ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਚੇਤਰੀ ਔਰ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ BCCI ਦੇ 39th ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ ਚਿਲੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਫੋਰ 2020 ਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? 2021 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ 2021 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? FAO ਦੁਆਰਾ। ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਿਲੀ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚਿਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਹੈ
और करंसी इत्थे पैसो चलती है। इस तो इलावा चिली बारे चिली की गल करिए, चिली ने COP25 समिट ਨੂੰ होस्ट करना सी, बट किसी कारण करके चिली दी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਿਟ है चिली च ना होके इसनू होस्ट किया गया स्पेन के मैड्रिड ਦੇ ਵਿੱਚ, स्पेन के मैड्रिड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ याद रखना। इस तो इलावा ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड डिस्कस कर लें। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी रोम इटली ਦੇ ਵਿੱਚ। फूड रिलेटेड जिन्हें भी हैडकुआटर ने रोम इटली ਦੇ ਵਿੱਚ ने, और इसके हैड ने क्यू डोंगियू। वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी कोलोगनी स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ। कोलोगनी स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है, और इसके हैड ने क्लॉस स्क्वेज आप सीधा क्लोज तो याद रखांगे। इसके हैड ने क्लॉस। फिकी के बारे आप डिस्कस कर चुके हैं, अज ही उसके फैक्ट्स डिस्कस किए हैं। इस तो इलावा आप डिस्कस किए थे फैक्ट्स यूनीसेफ के चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, दोनों ने मिलकर की लॉन्च किया है रीइमैजिन कैंपेन नू लॉन्च किया यूनीसेफ और फिकी द्वारा। हुणे आप डिस्कस करके हटे हैं क्विक रिवीजन दे विच। यूनैस्को की गल करिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी पेरिस ਦੇ ਵਿੱਚ। हैडकुआटर कित्थे है? पेरिस ਦੇ ਵਿੱਚ। और ऑड्रे ओजले इज द हेड ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ एक्सक्लूडिड इंडिया फ्रॉम इट्स छाबहार प्रोजेक्ट। इंडिया दे उस कंट्री के छाबहार प्रोजेक्ट के विचों किहड़ी कंट्री ने एक्सक्लूड कर दिता है, बाहर कर दिता है। की होया? तो सब तो पहले अगर आप डिटेल थोड़ी डिस्कस करते हैं कि उस टाइम की होया सी। चाइना और इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। चाइना ने पाकिस्तान दे विच फंडिंग शुरू की और इंडिया ने ईरान दे विच। ईरान ने इंडिया नू छाबहार प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करने के लिए कहा सी, ठीक है। और उस तो बाद उसनू डेवलप किया जा रहा सी इंडिया द्वारा ही, पर किसी कारण करके ग्रांट्स लेट हो गई पहुँचने दे विच, और ईरान ने की कहा कि असी तुहानू एक्सक्लूड कर रहे हैं फ्रॉम इट्स छाबहार प्रोजेक्ट तो इंडिया नू ईरान द्वारा एक्सक्लूड कर दिता गया, ठीक है जी। किहड़ी कंट्री द्वारा? ईरान द्वारा। ईरान कैपिटल है तेहरान। श्रीलंका जयवर्देपुरे कोटे, श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्देपुरे कोटे। इस तो इलावा कोलंबो भी श्रीलंका की कैपिटल है। चाइना कैपिटल बीजिंग है। भूटान कैपिटल की है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान कैपिटल थिम्पू। करंसी इत्थे नगुलतरम चलती है, थोड़ी यूनीक करंसी है नगुलतरम, याद रखनी है। बांग्लादेश कैपिटल है ढाका, करंसी टका चलती है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 बाय रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 किन्हां नूं नामित किया गया? रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड द्वारा। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड द्वारा किन्हां नूं नामित किया गया? इन्हां नूं नामित किया गया है वेद प्रकाश दुदेजा कौन ने? वाइस प्रेसिडेंट ने किसदे? रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी दे। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट ने वेद प्रकाश दुदेजा, इन्हों इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया। इस तो इलावा रणजीत कुमार नूं नासा का डिस्टिंग्विश मैडल दिता गया सी। नासा का डिस्टिंग्विश मैडल दिता गया सीगा रणजीत कुमार नूं। शोभा शेखर नूं ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट ऑनर दिता गया सी, ऑर्डर ऑफ द मैडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। किसनूं दिता गया सी? शोभा शेखर नूं।
रत्नाकर मतकेरी, रत्नाकर मतकेरी नूं महाराष्ट्र गौरमेंट द्वारा अवार्ड दिता गया सी। महाराष्ट्र गौरमेंट द्वारा प्रभाकर अवार्ड समथिंग इस तरीके का अवार्ड सीगा। महाराष्ट्र गौरमेंट द्वारा रत्नाकर मतकेरी नूं प्रभाकर अवार्ड दिता गया सी। अगे एक होर नाम सीगा, सिंपल याद रखांगे, प्रभाकर अवार्ड महाराष्ट्र गौरमेंट द्वारा। रत्नाकर मतकेरी। फ्रेया ठकराल, फ्रेया ठकराल दिल्ली तो बिलोंग करते हैं, इन्हों डेनी हेई अवार्ड दिता गया। डेनी हेई नहीं, सॉरी, डायना अवार्ड, डेनी हेई अवार्ड तो दिता गया सी यूनीसैफ द्वारा प्रियंका चोपड़ा नूं। फ्रेया ठकराल नूं दिल्ली तो बिलोंग करते हैं, डायना अवार्ड, डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर, डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर फ्रेया ठकराल नूं दिता गया सी। ठीक है जी, याद रखना है। इस तो इलावा एक चीज़ होर सीगी, अगर आप गल करिए रेलवे के रिगार्डिंग, रेलवे ने 2030 टारगेट रखे ग्रीन रेलवे का, आप डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज़ रेलवे द्वारा, रेलवे की अगर रेल कोच फैक्ट्री अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगी, पंजाब की न्यूज़ है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब द्वारा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब द्वारा एक आप डिस्कस कर चुके हैं, जीवन नाम का वेंटीलेटर लॉन्च किया सी इन्हों द्वारा ही। दूसरी चीज़ हुण इन्होंने लॉन्च किया है पोस्ट कोविड कोच, पोस्ट कोविड कोच, कोविड-19 के नाल फाइट करने के लिए पोस्ट कोविड कोच डेवलप किया, पोस्ट कोविड कोच डेवलप किया ताकि कोविड-19 के खत्म होने के दौरान इसनूं यूज़ किया जा सके परसन की सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू अपग्रेड पोबा फॉरेस्ट रिजर्व एज इट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोबा फॉरेस्ट रिजर्व, पोबा फॉरेस्ट रिजर्व नूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की गल की गई है, किहड़ी स्टेट द्वारा? असम द्वारा। असम गौरमेंट रिसेंटली इस तरीके की न्यूज़ के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा। अगर आप गल करिए, सब तो पहले आप एक न्यूज़ डिस्कस की थी, नैशनल पार्क बनाया जा रहा है, छेमा नैशनल पार्क असम दे विच। किस नाम का नैशनल पार्क बनाया जा रहा है? देहिंग पतकल नैशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नूं नैशनल पार्क दे विच बनाया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ आप डिस्कस की थी, असम दे ही काजीरंगा नैशनल पार्क दे विच गोल्डन टाइगर देखा गया सी, गोल्डन टाइगर देखा गया सी। ठीक है जी। तीसरी न्यूज़ असम के रिलेटेड कि पोबा फॉरेस्ट रिजर्व है, जोड़ा पोबा फॉरेस्ट रिजर्व है उसनों ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएंगे। पोबा फॉरेस्ट रिजर्व नूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा असम गौरमेंट द्वारा। कमेंट बॉक्स के तुसीं असम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दसनियां ने। असम के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैं दस देना, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस तो इलावा बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तुसीं कमेंट बॉक्स के दसनियां ने असम दी। इस तो इलावा डिफरेंट न्यूज़ ने आप पहले नहीं डिस्कस कीतियां हुई, डिस्कस कर लेने एक एक करके। सब तो पहले तेलंगाना के रिलेटेड, तेलंगाना गौरमेंट ने की करया, साइबर कैंपेन लॉन्च करया, CYBHER साइबर नाम तो एक कैंपेन लॉन्च करया साइबर क्राइम के रिलेटेड। साइबर क्राइम के रिलेटेड कैंपेन अगेंस्ट साइबर क्राइम लॉन्च किया गया साइबर तेलंगाना द्वारा। किहड़ी गौरमेंट द्वारा? तेलंगाना गौरमेंट द्वारा। MP सुनो डेली आप कोई ना कोई न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं MP के रिलेटेड। हुण MP गौरमेंट ने की करा, डिसाइड किया कि 5000 रुपये की 5000 रुपीज़ की मंथली असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। किसनों? एसिड अटैक विक्टिम्स नूं, एसिड अटैक विक्टिम्स नूं 5000 रुपीज़ की मंथली असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। उत्तराखंड के रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस कर लें कि माना विलेज, उत्तराखंड दे विच माना विलेज है, उत्तराखंड दे विच एक विलेज है माना विलेज, इसनूं आइकॉनिक विलेज बनाने की गल की गई है। आइकॉनिक विलेज बनाने की गल की गई। आइकॉनिक विलेज का मतलब है कि इत्थे जिहड़ी डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा की जाएगी, काफ़ी हद तक इसनूं एक डेवलप किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि बेसिकली ये बॉर्डर के उत्ते है। ये ऐसा विलेज है जिहड़ा इंडिया और चाइना के बॉर्डर के उत्ते है, उत्तराखंड के विच है, और इंडिया के चाइना के बॉर्डर तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 किलोमीटर के अंदर है, चाइना के बॉर्डर के नेड़े। ठीक है जी। उत्तराखंड का माना विलेज, ये याद रख। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ने अनाउंस किए ने माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट के विनर्स। सॉरी, याद होएगा इंटरनेशनल योगा डे का 6वां एडिशन ऑब्जर्व किया गया 21 जून नूं। ठीक है जी। तो
ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 31 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਸਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਮਾਈ ਯੋਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਗਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਨਰਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਨਰਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਰਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸ਼ਵਥ ਹੈਗੜੇ ਔਰ ਰਜਨੀ ਗਹਿਲੋਟ, ਅਸ਼ਵਥ ਹੈਗੜੇ ਔਰ ਰਜਨੀ ਗਹਿਲੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਥ ਹੈਗੜੇ ਔਰ ਰਜਨੀ ਗਹਿਲੋਟ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰਿਆ ਔਰ ਸਾਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰਿਆ ਔਰ ਸਾਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਅਡਲਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਡਲਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਵਰਲਡਸ ਮੋਸਟ ਅਫੋਰਡੇਬਲ COVID-19 ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕਿਟ ਕੋਰੋਸੋਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਈ IIT ਦਿੱਲੀ। IIT ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕਿਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਿਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੋਰੋਸਿਓਰ। ਕੋਰੋਸਿਓਰ IIT ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਔਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਦੁਆਰਾ। HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਕੋਰੋਸੋਰ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਿਆਤਾ। ਪ੍ਰਗਿਆਤਾ, ਪ੍ਰਗਿਆਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਗਿਆਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੀ ਤੋਂ ਹੈ ਪਲਾਨ, ਆਰ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ, ਪਲਾਨ ਰਿਵਿਊ ਅਰੇਂਜ, ਗਾਈਡ, ਵਾਈ ਤੋਂ ਯॉक यानी कि टॉक रखा गया है, ए तो असाइन, उस तो बाद ट्रैक और एप्रीशिएट, ठीक है जी। इस दे बारे डिटेल दे विच कल डिस्कस कर लांगे क्विक रिवीजन दे विच। प्रग्याता गाइडलाइनस नूं लॉन्च किया गया, प्रग्याता गाइडलाइनस नूं लॉन्च किया गया। इस तो इलावा बाकी मिनिस्ट्रीज़ की गल करिए, बाकी मिनिस्ट्रीज़ द्वारा भी कुछ ना कुछ लॉन्च किया गया। सब तो पहले नित्यानंद राय, नित्यानंद राय, नित्यानंद राय डिप्यूटी होम मिनिस्टर ने, डिप्यूटी होम मिनिस्टर ने इन्हों ने की किया, एक वैबीनार लॉन्च किया, एक वैबीनार नूं प्राइज़ किया कह सकते हैं, एक वैबीनार होस्ट किया गया इन्हों द्वारा। किस दे उत्ते वैबीनार किया गया इन्होंने, थंडर स्ट्रोम एंड लाइटनिंग के उत्ते, बिजली कह सकते हैं, हिंदी पंजाबी दे विच आपां बिजली कहने कि बिजली कड़क रही है बारिश वेले, तो थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग के उत्ते एक वैबीनार होस्ट किया लोगों को अवेयर करने के लिए नित्यानंद राय द्वारा। नित्यानंद राय डिप्यूटी होम मिनिस्टर ने। महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र नाथ पांडे कौन ने? महेंद्र नाथ पांडे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने। इन्होंने इनोग्रेट किया, इन्होंने कुछ इनोग्रेट किया, की इनोग्रेट किया, नैशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नैशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कित्थे कित्थे लॉन्च किया गया इसनूं? मणिपुर दे विच, बेसिकली मणिपुर दी कैपिटल इंफाल दे विच, मणिपुर दी कैपिटल इंफाल दे विच महेंद्र नाथ पांडे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने नैशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नूं इनोग्रेट किया, ठीक है जी, याद रखने। इस तो इलावा श्रीपद येसो नायक, श्रीपद येसो नायक अगर आप गल करिए वैसे तो यह आयुष मिनिस्टर ने, आयुष मिनिस्ट्री से रिलेटेड अपने हुणे डिस्कस किया कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने विनर्स को अनाउंस किया माई योगा ब्लॉग कॉन्टेस्ट दे लई। इस तो इलावा श्रीपद येसो नायक डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर भी ने, डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर भी ने। और इन्होंने लॉन्च की एक कॉन्फ्रेंस लॉन्च की, कॉन्फ्रेंस का 5वां एडिशन, 5th एडिशन उस कॉन्फ्रेंस का लॉन्च किया गया एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के उत्ते, एरोस्पेस
और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग दी कॉन्फ्रेंस दा 5th एडिशन न्यू दिल्ली दे विच होस्ट किया गया। ठीक है जी, किन्ना द्वारा? श्रीपद यसो नायक द्वारा, जिसकी थीम रही सी एम्पावरिंग इंडिया विद आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, एम्पावरिंग इंडिया विद आत्मनिर्भर भारत मिशन, एम्पावरिंग इंडिया विद आत्मनिर्भर भारत मिशन, याद रखना। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर ने इन्हें रिलेटेड हजे कोई न्यूज़ नहीं है, बाद में डिस्कस करेंगे। अज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। जिन्नी भी न्यूज़ सीगियां आपां ने डिस्कस कीतियां ने, इन्हां नूं कल आपां एक बार दोबारा क्विक रिवीजन दे विच भी डिस्कस करांगे। अगर किसी नूं समझ ना आई होवे तो वो उत्थे भी समझ सकदा ध्यान नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।